Okay, students, welcome again to my class. As we have completed exercise 16.1, 16.2, and we have started yesterday 16.3, and we have completed first two questions of this exercise in yesterday's class. Today we'll start with question number 3. Till now we have done the puzzles related on addition and multiplication. Now we will start subtraction puzzle related to subtraction. So just see this first question here. A1, AB minus B7 is equals to 18. You are supposed to find the value of A and B. See, तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे B, if you subtract 7 from B, we will get 8. तो B की वैल्यू क्या हो सकती है? B में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करें और 8 मिले, तो इसको यदि हम सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. See, B minus 7 is equals to 8. What will be the value of B? 7 will go this side. That means it will be 8 plus 7, correct? 8 plus 7 means what? 15. Am I clear? Students, is it clear? Yes. So B की value 15. Yes, sir. See, B is a single digit number. ये single digit number है तो 15 तो हो नहीं सकता. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? Just I have to take B is equals to 5. This implies what? B is a single digit number. क्या लिखोगे? B is a single digit number. Single digit number. तो this implies B की वैल्यू क्या होगी? 5. मतलब B पे 5 हो गया, तो if we carry from 1, यदि मैं यहाँ से 1 कैरी करूँ, तो it will be 15. तब 15 हो जाएगा, and 15 minus 7 is 8. Is that clear? Is that clear? The value of B is clear to everyone? Yes, sir. तो यहाँ पे हम B तो पता ही चल गया हमको, ये B की जगह पे 5 रख देंगे. Now this A minus B is equals to what? मतलब A minus 5 is equals to what? 1 आना चाहिए. A minus 5 is equals to 1 आना चाहिए. तो what will be the value of this A? A क्या होना चाहिए? फिर ये 6 हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं? A की वैल्यू 6 होगी. Yes, sir. लेकिन यदि यहाँ पे हम 6 रखेंगे तो 6 में से तो 1 कैरी भी हुआ है. 1 कैरी हुआ है, डेट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? एज हाँ 1 और ऐड हो जाएगा, मतलब से A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी. तो यहाँ पे लिखेंगे एज we have taken one carry to B, therefore A is equals to what? 6 plus 1, and that is equal to 6 plus 1, that is equals to 7. Therefore the value of A is 7. मतलब A की वैल्यू क्या हो जाएगी? Therefore the value of A is 7 and the value of B is 5, and then if you substitute this one, 7 5 minus 5 7 is equals to what? 1880 नहीं आएगा? Holds true. Therefore A is equals to 7 and B is equals to 5 is the correct answer. Is it clear to everyone? Yes, sir. Clear. ये मेथड भी आप लिखो नोटबुक में. देखो सिंपली हम कर सकते थे, लेकिन ये मेथड समझाना जरूरी था. Hope it is clear to everyone now. Still anybody have any confusion? Just unmute yourself and speak, and you can verify the answers also. Is it correct or not? Please verify it. 16.3 question number 3 का A. You can verify it. Seven and 5. It is correct. Just write it now. Okay, students. I hope this solution number A is clear to everyone. Now, similarly, you can solve this B1 also. See, in B1, if you observe this B1, first case, 5 minus D is equals to 6. क्या लिखेंगे हम? 5 minus D. आंसर क्या आना चाहिए? 6. What will be the value of D? If you take this D to this side and if you take this 6 to this side, what will be the value of this D? 1.
देखो यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो -1 आ रहा है, लेकिन -1 तो कभी होगा नहीं। यहाँ पे डी की जगह पे हम पॉजिटिव डिजिट ही लिखेंगे, नेगेटिव नंबर तो लिखेंगे नहीं। तो क्या यदि हम यहाँ पे डी पे 1 रखेंगे तो क्या 6 आएगा? आएगा, बोलिए। No, ma'am. No, मैम sir. नहीं नो सर। नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो डी पे क्या होगा, यदि देखो यहाँ पे 15 मान ले हम इसको, क्योंकि यदि ये 1 होगा, 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 में से 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 4 4. 4. तब 5 से छोटी वैल्यू सर लेंगे। डी वैल्यू विल बी 9। लिसन टू मी, आई नो। सी, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, यदि मैं 5 से छोटी वैल्यू या 5 के इक्वल वैल्यू ले रहा हूँ तो 6 तो आने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो डी होगा इट विल बी ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा होगा तो 6 लेके देखेंगे, 7 लेके देखेंगे, 8 लेके देखेंगे, फिर 9 लेंगे तो 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 मीन्स व्हाट? 5 माइनस 9 मीन्स व्हाट? 5 तो माइनस होगा नहीं, ये होगा, बोलिए। We can carry out. हाँ, कैरी करना पड़ेगा, दैट्स गुड। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट दिस 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इट विल बी 6, मतलब 8. 6. 6। तो डी की वैल्यू क्या हो गई? 9। इज इट 9. क्लियर? डी की वैल्यू 9 हो गई। तो 9 5 में से, मतलब 15 में से 9 माइनस हुआ तो 6 आया। अब यहाँ पे बी था, बी में से 1 कैरी किया हमने, मतलब ये क्या हो जाएगा, बी माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Am I clear? Am I clear? Yes, sir. अब b माइनस 1 है, b माइनस 1 है और उसमें से 7 माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो कितने में से 7 माइनस करेंगे कि हम 6 आएगा? यदि यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ तो 13 माइनस 7 इज व्हाट? 13 माइनस 7 इज व्हाट? बोलिए, 13 माइनस 7 कितना होगा? 6 होगा, मतलब यहाँ पे 3 होगा, लेकिन 1 तो कैरी कर लिया, यहाँ 1 तो कैरी कर लिया, मतलब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। 13 माइनस 7 इज 6। तो देयरफॉर ये जो b माइनस 1 होगा वो क्या होगा? 3 होगा। लेकिन तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? ध्यान से Yes, sir. नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, फिर से पूछो। अब क्यों b माइनस 1 हुआ? क्योंकि यहाँ पे तो 5 था और हमने 15 में से माइनस किया, तो एक तो कैरी कर लिया था, तो डेट मींस हियर इट विल बी b माइनस 1। अब b माइनस 1 था और यहाँ पे यदि हम 3 रखेंगे तो 13 माइनस 7 होगा, लेकिन यहाँ तो 1 कैरी चला गया, मतलब क्या बचा था यहाँ पे? 2 बचेगा, 2 में से 7 जाएगा तो नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होगा, 4 होगा, तभी तो करेंगे तो 3 बचेगा। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ b इज 4। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ b विल बी 4। होप इट इज क्लियर। b की वैल्यू क्लियर है? अब b की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 ही रख देंगे हम, राइट? अब यस सर। 4 में से c को माइनस करेंगे, आंसर क्या आना चाहिए? 6। 4 में से 4 से छोटी वैल्यू या 4 की इक्वल वैल्यू माइनस करेंगे तो 6 तो आएगा नहीं। तो 14 में से कितना माइनस करेंगे कि 6 आएगा? ऑल्सो वी हैव 14 में से कितना माइनस करेंगे? 8। 8. या 14 माइनस 8 इज 6, राइट ना? तो c की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई कि नहीं हो गई? तो c की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई ना? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर हाउ इट इज 8? Am I audible or Yes, sir. हाँ, तो c की वैल्यू 8 हो गई। अब यहाँ पे तो एक कैरी किया था, मतलब a माइनस 1 है, ये क्या है? जनरली a था, लेकिन अभी 1 तो कैरी ले लिया हमने इधर, तो a माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6। तो क्या होगा? a की वैल्यू ओरिजिनल में क्या होगी? जो भी वैल्यू आएगी, अब कितना a में से 5 को माइनस करो 6, तो कितने में से कितने को माइनस करोगे कि 6 आएगा? 11. 11 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6, राइट ना? लेकिन 11 यहाँ कब होगा? जब ये 1 कब होना चाहिए? 1 माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा? a की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पे क्या हमको पता है कि 11 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6, राइट? देयरफॉर दिस a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1।
and therefore A is equals to what? 2. Is it clear? Therefore we can write here A is equals to 2, B is equals to क्या लिया था हमने 5 लिया था ना, नहीं, B is equals to 4 and C is equals to 2 and D is equals to DB है क्या? Yeah, D is equals to 9. Sir, C is equals to 8. Yeah, C is equals to 8. You are correct बेटा. तो अभी यदि ऐसा लेंगे हम तो क्या हो जाएगा ये? ओके. A is equals to 2 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे बाद में 1 भी तो है, 1 से कैरी मिल जाएगा ना. नहीं बराबर ही है, सही है. तो क्या हो जाएगा ये? therefore 1 2 B कितना है हमारा 4 5 minus 5, C is what 8 7 and D is 9. माइनस करके देख लो तो 15 minus 9 is 6, 13 minus 7 is 6 और यहाँ पे 13 minus 8 13 minus 8 गड़बड़ हो रहा है ना? 6 नहीं 13 minus 8 कहाँ से 6 होता है? 5 सर 5 लेकिन यहाँ पे 6 आना चाहिए ना, हमने गड़बड़ कुछ किया है. 1 मिनट. B की वैल्यू क्या आई है? 4 ही आई है ना. B की वैल्यू 4 ही आई है. Yes, sir. कैसे 6 सर अब पीछे आंसर देख लो. जस्ट अ मिनट. B की वैल्यू हमने 4 लिया तो 14 में से 13 में से हाँ बराबर है बेटा. 13 माइनस होगा ना, 1 कैरी करेंगे ना इधर. 13 माइनस, लेकिन 13 में से 8 जाएगा. C की वैल्यू 8 आई. देयर इज अ कंफ्यूजन इन दिस वन. सर C का 7 आंसर आएगा. 1 मिनट बेटा, कहाँ गड़बड़ किया है? C का 7 आ रहा है तो 8 कैसे? C यहाँ पे हाँ बेटा सर C का 7 है. 7 यहाँ पे 6 7 आएगा. यस सर, C की वैल्यू 7 है पीछे. अब बराबर यहाँ 7 होगा तो हो जाएगा. C is equals to 7 तो 7 को यहाँ पे 7 करो. यस सर. यहाँ पे 7 करो. जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन देन. इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा. दिस इज 7. 14 Okay. Am I audible, students? Students, am I audible? Students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Due to network issue, I have logged out. See, Yes, sir. A की वैल्यू Yes, 7 होगी, then it will be correct. तो 14 minus 7, यहाँ पे 13 हो गया. 13 minus 7 is 6. यहाँ पे 11 हो गया. 11 minus 5 is 6, and here it will be 0. Therefore, the value of A equals to 2, the B equals to 4, and C equals to 7, and D equals to 9 is the correct answer. Now you can verify it. Students, is it clear or any confusion is there? Student, is it clear? Sir. हाँ बोलिए. Sir, here you write 14 minus 8. What बेटा? Sir, 14 minus 8 is equal to 6. 14 नहीं होगा ना बेटा. 14 minus 8 नहीं होगा. एक्चुअली देखो यहाँ तो कैरी कर रहा है ना बेटा, यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ से भी तो कैरी करेंगे. यहाँ पे 3 हो जाएगा ना. देखो यहाँ पे 5 था, 5 यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा. अब 13 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा. करेक्ट ना? सिमिलरली यहाँ से 13 कब होगा? यहाँ पे जब यहाँ से 1 कैरी करेंगे तब ना. तो 13 में से 7 जाएगा तो फिर से 6 आएगा. यहाँ पे 1 हो जाएगा. 1 है तो यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो 11 minus 5 6. इज इट क्लियर? Okay, sir. हाँ 8 होगा तो नहीं होगा. यहाँ पे देखो ये 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा. 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा. लेकिन यहाँ पे जब हम C के जगह पे 8 माइनस कर रहे थे तब
14 में से, लेकिन जब 14 होगा तब ना, यहाँ पे तो 13 हो गया, यहाँ पे गलत लिखा है, ये 13 माइनस 7 होगा ना, यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो 13 माइनस 7, यहाँ पे सी की वैल्यू 7 आएगी। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो सेट नहीं हुई थी, इसके लिए सॉल्व नहीं हो रहा था। Therefore the value of C is 7. Is that clear? Is that clear now? Yes, sir. Write it. Okay, students, now moving to the solution number C. In this C1, there are more variables A, B, C. See here, C minus B is A, B minus C is 1, C minus C is equals to B. You have to set the values of A, B, C such that this equation holds true. Right? Randomly, you are going to take the values. Suppose I am going to take the value of A. Suppose मैं एक वैल्यू लेता हूँ. Suppose I am going to take is A, and the value of B is 5, and the value of C is 3. यहाँ पे रख के देखते हैं क्या ये सही है. 8 रखता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 8 5 C. C कितना है हमारा 3 is equals to 3 3 B. B is 5. ठीक है. 5 minus 5. बेटा mute yourself. Who is this? ini kawan itu ya dok. C. Okay. अब देखो यहाँ पे 13 minus 5 is what? 13 minus 5. Student, 13 minus 5 is what? 8 sir. 8 आ गया यहाँ 8 sir. राइट. तो 8 जो है हमारा A ही है, यहाँ पे A आ गया राइट. A is equal to 8. यहाँ पे क्या बचा 4 बचा. 4 minus 3. 4 minus 3 is 1 राइट. ये हमारा 1 ही है यहाँ पे. एंड here 1 is carried from here. नहीं carry नहीं हुआ ना. 8 बचा. 8 minus 3 is what? 5. और 5 हमारा B है करेक्ट ना. ये देखो B. तो ये जो है holds true. If we take A is equals to 8, B is equals to 5, and C is equals to 3. In this particular question, you are supposed to just learn this value A, B, C. आप इसको याद रखो. पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको बहुत सारी वैल्यू बार बार रख के देखनी पड़ेगी. तो इसमें आप लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा. A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 3 होगी. तो दिस इक्वेशन ABC minus CCB is equals to B1A. You can get very easy. Otherwise, face more difficulty when you are going to take A is equals to suppose you can take any other values. तो आपको बार बार रख के चेक करना रहेगा. इसलिए इसमें पर्टिकुलर इस केस में आपको ये वैल्यूज याद रखना रहेगा. A is equals to 8, B is equals to 5, and C is equals to 3. पूरे इस एक्सरसाइज में Okay sir. एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ज्यादा वेरिएबल्स है और आएगा, वैसे भी आएगा, लेकिन आपका टाइम ज्यादा जाएगा. तो इट्स बेटर टू just learn this one. In this case, the value of A is 8, the value of B is 5, and the value of C is 3. If we take these values, this equation holds true. Therefore, the value of A 8 and B 5 and C is equals to 3 in this case. Any confusion in this one? No. उसको लिख लो फटाफट. Oh, no sir. Okay, now from question number D. There will be a multiplication. In first case D1, AB multiplied by 5, AB multiplied by 5, and you have CAB. एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पे B है और यहाँ पे 5 है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको यदि मैं 5 into 5 करूँ, 5 5 क्या होता है Sir. हाँ बोलिए. Yes, बेटा Sir, बोलिए. A is equal to 7, B is equal to 5, and C is equal to 3. Yes, you are right. But if you multiply this B, sorry, if we take B is equals to 5, then also I get here B. 5 5 is 25. करेक्ट ना. लेकिन क्या होगा उसके आगे जब हम जाएंगे, यहाँ यदि मैं 5 लेता हूँ
और उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं तो 5 5 या 25 का 5 यहाँ पे हो जाएगा, 2 कैरी करेगा, राइट। तो 5 अब यहाँ पे हम क्या लेंगे कि यहाँ पे ए आना चाहिए, 7. 7 लेंगे तो आ जाएगा। चलो 7 ले लेते हैं। तो 7 5 या 35, 35 प्लस 2 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. So therefore, if we take A is equals to 7, B is equals to 5, and C is equals to 3, then this what A की वैल्यू क्या लिया हमने? 7 into 5, 75 into 5 is what? 573 holds true. Therefore, the value of A is equals to 7, B is equals to 5, and C is equals to 3. Is it clear? अब देखिए मैंने 5 पहले क्यों लिया, क्योंकि 5 5 25 होता है, तो उससे मैंने ट्राई किया, आ गया, पहले वाले में ही आ गया। यदि नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, दूसरी वैल्यू लोगे, और ऐसे करके आप मतलब कि इस तरह से, इसमें तो कंडीशन दिया है कि 5 से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। या 7 से मल्टीप्लाई करते तो नहीं आता, 7 7 जा 49 9 आता। यदि मैं वहाँ पे और कोई डिजिट लेता, 1 लेता तो 1 1, लेकिन 1 5 जा 5, मतलब कि केवल 5 ही ऐसा है कि जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, you can solve this E and F. Try to solve this E and F now. Try to solve the next question also. We will start our next class tomorrow, and we will solve the rest of the questions in the next class.